Hello students. In the last class I explained the meaning of BOP and explained the components of BOP. Once again I repeat, the meaning of BOP means it shows only the annual statement which shows the sources and uses of the foreign exchange, or you say कि it is a systematic record of the all economic transactions of a country to the rest of the world. एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, सो दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एनुअल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं. सो क्योंकि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर है, क्योंकि तो ऑब्वियसली इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. फॉर मेंटेन द बीओपी हमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट वी टेक द सम एंट्रीज इन द क्रेडिट साइड एंड सम एंट्रीज इन द डेबिट साइड. विच एंट्रीज इन द क्रेडिट साइड? तो इट मीन्स all those transactions which leads to inflow of the foreign exchange. All transactions are recorded in the credit side. On the other side, which transactions leads to outflow of the foreign exchange? All transactions is recorded in the debit side. Clear? तो फर्स्ट हमें बीओपी को मेंटेन करते समय एक तो क्रेडिट एंड डेबिट कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है. द सेकेंड वन इज दे ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑल 5 transactions. We take the 5 transactions: visible, invisible, borrowings, investment and the foreign exchange reserves. Clear? So out of the some transactions we recorded in the current account and some transactions are recorded in the capital account. So it means to maintain the BOP we have the two type of the account. The one is the current account, the other one is the capital account. Clear? Now today I explain the two main important question. What is the meaning of the current account and what is the meaning of the capital account, and explain its component. Clear है? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज द करंट अकाउंट? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसे हमें करंट अकाउंट में रखना है, इसने हमें कैपिटल अकाउंट में रखना है? तो इन द कैपिटल अकाउंट अगर सिंपल डेफिनेशन में जाए तो सम बुक्स लिखती हैं कि करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच यूज ओनली द transactions of the visible and the invisible trade. Clear? But this is not the complete definition. The complete definition इसके अंदर हम केवल वो transactions रखेंगे which neither affect the liabilities and nor affect the assets of any country. Clear? तो जिससे हमारी कंट्री जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, जिन ट्रांजेक्शन से ना तो हमारी कंट्री की लाइबिलिटीज अफेक्ट हो रही हैं ना हमारी कंट्रीज के एसेट्स अफेक्ट हो रहे हैं. द ऑल दोज ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट. क्लियर? तो इट मीन्स द करंट अकाउंट records all those flows of foreign exchange का वो सारे transactions which neither lead to any foreign exchange liability, towards rest of the world, nor create any foreign exchange assets abroad. Clear? So which transactions neither affect the liabilities, foreign exchange liabilities, or nor affect the foreign exchange assets to abroad? So the all transactions recorded in the current account. So on the behalf of this we have the main two components. The number one is visible. क्लियर? इसका हम सम बुक्स में इसका नाम दिया जाता है मर्चेंडाइज. क्लियर? द फर्स्ट कंपोनेंट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट. क्लियर? द फर्स्ट कंपोनेंट इज द विजिबल गुड्स, या और यू से द मर्चेंडाइज ट्रेड. तो विजिबल मीन्स इन द विजिबल ट्रांजेक्शंस वी टेक द विजिबल आइटम्स, और यू से द फिजिकल गुड्स. We take the all export and import from only the goods, not the services.
क्लियर हो गया? वी टेक ओनली द फिजिकल आइटम्स, फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज मेड बाय एनी मटेरियल। क्लियर हो गया? तो इन दिस वी इंक्लूड all types of physical goods. Example, export and import of clothes. Suppose export and import of clothes, clear हो गया? Export and import of spices, export and import of any machinery, the all are transactions recorded in the visible items. Clear हो गया? तो suppose to be अब हमें ध्यान रखना है कि out of the export of the goods और out of the import of the goods which transaction is recorded in the which side. Clear हो गया? तो it means income received from exports of goods, exports of goods are recorded in receipts from exports. हमने सामान एक्सपोर्ट किया, उसके अगेंस्ट में जो भी आपने रिसीव किया दैट इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। ये आपको लाइन थॉरो करनी है क्योंकि कभी कभी सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, आपको एक ट्रांजैक्शन एग्जाम में दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन विच साइड इन द बीओपी। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि दिस ट्रांजैक्शन इज, जो भी आपको पता चल रहा है कि इट इज अ रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट, अगर वो रिसिप्ट है तो दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। रीजन साथ में देना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट लीड्स टू inflow of foreign exchange. Clear? Suppose next is against this the payment for, if you import anything तो आप पेमेंट करते हैं फॉरेन करेंसी फॉर्म में, तो पेमेंट फॉर import of goods are recorded in debit side because it leads to outflow of foreign exchange. तो बस आपको इतना एक सॉलिड रीजन रखना है, क्रेडिट साइड बिकॉज इट लीड्स टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डेबिट साइड बिकॉज इट लीड्स टू द आउट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ये लाइन पे आपको बोर्ड में 2 मार्क्स मिलेंगे। एक सिंपल ट्रांजैक्शन गिवन है कि आपको ये ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में बताना है कि दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन विच साइड। तो सिंपल अगर आपको देख के लग रहा है रिसिप्ट तो इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, लीड्स टू इनफ्लो। इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड बिकॉज इट लीड्स टू आउटफ्लो। जो भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। द सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज इनविजिबल ट्रेड। Clear? But in the invisible trade, we take the 3 types. So invisibles are sub-classified into the 3 groups. अगर हम invisible को करते हैं तो हम इसका हमने 3 sub-divided group कर दिए. The first one is the services. The second one is the income, with only the factor income. And the third one is the transfer income. क्लियर? अब हम इन तीनों को डिटेल में अलग अलग से पढ़ेंगे। नंबर 1 इज द सर्विसेज। तो इनविजिबल का सब हेडिंग हो गया, सब पॉइंट हो गया, सब ग्रुप हो गया हमारा सर्विसेज। तो इन द सर्विसेज व्हाट वी इंक्लूड, तो इन द सर्विसेज वी टेक द ऑल टाइप ऑफ द सर्विसेज। तो विच टाइप ऑफ द सर्विसेज, लाइक बैंकिंग, tourism,
ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो जैसे अगर आपने 12th के बाद बाहर से एजुकेशन लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स यू इम्पोर्ट द एजुकेशन सर्विसेज। बाहर का कोई फॉरेन स्टूडेंट हमारी कंट्री में आकर एजुकेशन लेना चाह रहा है, तो इट मीन्स हम अपनी एजुकेशन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दिस सेंस वी टेक द एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज ऑल्सो। तो इट इंक्लूड्स द ऑल टाइप्स ऑफ द सर्विसेज सोल्ड टू एंड परचेज बाय। इट मीन्स इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स, हम इसमें बात कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स all type of services sold to and purchased by। चाहे हम सेल कर रहे हैं चाहे हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री to the rest of the world। तो सेम यहां भी सेम क्वेश्चन है, आइदर यू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यू इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। इफ यू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अब एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, इफ यू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो इट मीन्स फॉरेन करेंसी आ रही है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया तो ऑब्वियसली इट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड, द क्रेडिट साइड। तो रिसीप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ द सर्विसेज, द ऑल रिसीप्ट्स which is against of the export of services are recorded in the credit side because these cause inflow of the foreign exchange। On the other side, if you import of any services तो आप उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्लियर हो गया। तो पेमेंट ऑफ द सर्विसेज, पेमेंट ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, तो इफ यू इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हियर एम इज यूज ओनली फॉर द इंपोर्ट्स, अगेन M is used for the imports। तो if you import of the services, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट की तो इससे क्या होगा, it leads to outflow of foreign exchange। So it is recorded in the debit side। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, अगर डिटेल में नहीं लिखूंगी। The second one is take the factor income और यू से द इनकम। अब यू आपका क्वेश्चन होगा मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम और द ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम इट इज द इनकम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे दे आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वंस अगेन आई रिपीट, दे आर द 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर लैंड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसको अगेंस्ट में क्या मिल रहा है, दैट इज अ रेंट। इट मीन्स लैंड क्या रिसीव कर रही है, रेंट। एक लेबर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या अर्न कर रहा है, वेजेस। कैपिटल अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम क्या अर्न कर रहे हैं, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर क्या दे रहा है, अपना प्रॉफिट ले रहा है, अर्न कर रहा है। तो जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दे आर द 4 फैक्टर्स। तो जो इनकी इनकम है, लैंड की इनकम रेंट, लेबर की इनकम सैलरी, कैपिटल की इनकम इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर की इनकम प्रॉफिट। तो दीज आर द 4 फैक्टर इनकम इन द इकोनॉमी जो हम पढ़ेंगे डिटेल में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहां पे मैं इन्हीं 4 इनकम की बात कर रही हूं। तो बस इसमें ये डिफरेंस है कि अगर एक तरफ से ये बायलैटरल पेमेंट है, अगर एक तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ तो ही अदर साइड से इनकम रिसीव होगी। ट्रांसफर इनकम में ओनली वन साइडेड पेमेंट होता है। उसमें से जैसे मैंने अपने बच्चे को पॉकेट मनी दी, इफ आई प्रोवाइड द पॉकेट मनी टू माई बेटा, लेकिन मुझे उसके अगेंस्ट में कोई गुड्स एंड सर्विसेज उसने मुझे कोई प्रोवाइड नहीं की, तो दैट इज द ट्रांसफर इनकम, दैट इज द वन वे। बट अगर मैं स्कूल को अपनी सर्विसेज दे रही हूं तो स्कूल मुझे इसके अगेंस्ट में क्या प्रोवाइड कर रहा है, सैलरी। तो ये बायलैटरल पेमेंट है। तो जो मेरी सैलरी है दैट इज माय फैक्टर इनकम, बट जो मैं अपने बेटे को पॉकेट मनी दे रही हूं दैट इज द ट्रांसफर इनकम। क्लियर। तो इसमें मैं आपका ओनली वी टेक ओनली द इनकम, वी टेक ओनली द फैक्टर इनकम। तो इट इंक्लूड, सपोज करो आप इसमें सिंपल हम लिखेंगे, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम, investment income in the form of
interest, rent, profit and compensation of employee. They are the four factor income. Clear? मैंने अभी जस्ट बताया, मैंने जिसका नाम अभी सैलरी बोला था, दैट इज द नॉर्मली टेक्निकली इज ट्रीटेड एज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. तो दे आर द फोर फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो इन द इनकम वी टेक द ऑल फोर फैक्टर इनकम. तो जो भी हमें इनकम हम रिसीव कर रहे हैं, विच भी इनकम रिसीव्ड बाय द residents of a country from foreigners, जो हम ऑब्वियसली वर्ड ही क्लियर है, रिसीव फ्रॉम हो गया, तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा हमारा, लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ऑब्वियसली इट इज रिकॉर्डेड इन दिस साइड, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड. क्लियर? नाउ ऑन द अदर साइड, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट्स मेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री to the rest of the world, for factor services. क्लियर? इट मीन्स हमने किसी की लैंड यूज की फॉरेन कंट्रीज की, हमने किसी की लेबर यूज की फॉरेन कंट्रीज की, तो हम उसके अगेंस्ट में उनको पेमेंट करेंगे. तो जो हम उनके अगेंस्ट में उनको पेमेंट, जब हमने किसी की फैक्टर सर्विसेज यूज की है, तो ऑब्वियसली हम उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. तो ऑब्वियसली इन सबको हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, बिकॉज इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सो ऑब्वियसली द ऑल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. क्लियर? In the invisible items, the third is the most important, that is a transfer income. In the transfer income, we includes only the gifts. It includes gifts, donations, personal remittances, etc. These are the one-way transaction. One-way transaction means वन साइड से इनकम या वन साइड से पेमेंट पैसा जाएगा, अदर साइड से उधर उसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव नहीं होगी. क्लियर हो गया? चाहे हम पैसा रिसीव, मनी को हम फॉरेन एक करेंसी रिसीव कर रहे हैं, चाहे हम फॉरेन करेंसी पेमेंट कर रहे हैं, बट विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न्स. वन वे ट्रांजेक्शन मीन्स कि अगेंस्ट दिस ट्रांजेक्शंस विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि व्हेन आई गेव पॉकेट मनी टू माय बेटा, मैंने अपने बेटे को पॉकेट मनी दी, लेकिन उसने उसकी मुझे अगेंस्ट में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो दिस इज द वन वे ट्रांजेक्शन. सो दैट इज द ट्रांसफर इनकम. तो सेम है, कभी भी जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, कोई भी इकोनॉमिक कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को हेल्प करती है फॉरेन. तो जब एक दूसरी कंट्री को हेल्प करेगी तो फॉरेन करेंसी फॉर्म में करेगी, फॉरेन एक्सचेंज या तो जाएगी या फॉरेन एक्सचेंज आएगी. तो वो सारी जो ट्रांजेक्शन्स है जो वन साइडेड है, जिसके अगेंस्ट में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रही है, द ऑल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द ट्रांसफर इनकम कॉन्सेप्ट. क्लियर? तो इन द सेम हेयर, अब यहाँ भी दो ही चीजें कि या तो हम गिफ्ट्स एंड डोनेशंस रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या हम उनको प्रोवाइड कर उनको दे रहे हैं. तो सेम हेयर, तो अब हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, द रिसीप्ट्स फ्रॉम यूनिलेटरल ट्रांसफर
unilateral transfer from rest of the world, अगर फॉरेन कंट्रीज से हमें गिफ्ट्स एंड डोनेशन या चैरिटी किसी भी फॉर्म में फॉरेन करेंसी आई है तो दीज आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. ठीक है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड because it leads to inflow of foreign exchange. Clear? So on the other side, payment of unilateral transfers to the rest of the world, either from the rest of the world, either to the rest of the world, to the rest of the world are recorded in debit side because it leads to outflow of foreign exchange. Clear? Now my one question is complete. The meaning of current account and explain its components. In the current account we take only those transactions which neither affect the liability and assets of our country. So either you take the visible items or you take the invisible items. But both transactions neither affect our country's liabilities and assets. Clear? Now the next question is, what is the meaning of the capital account and explain its components? Okay? This question I will explain in the next class.